So yeah, let's start now. For the second part, let this discussion be open. I know the first part was also a lot more open, but for now, let's talk about our legal background, maybe how it has helped us develop certain Hmm. skills, like in informal way and formal way. So informally, I feel like pehle bhi tha, but I can have more open conversations with a lot of people across the spectrum. Like when I was in Pune or maybe Mumbai, so वहां से देख के this region of Latur, थोड़ा प्रेजुडिसेस होते ही हैं कि हाँ ये ऐसे ही Hmm. लोग होते होंगे एक्सेट्रा, बट नाउ दैट आई हैव सीन पीपल अक्रॉस, जैसे एसएचजीज, आईटीआई से ग्रेजुएट जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, एवरीवन, उनका स्ट्रगल पता चलता है कि where exactly things are falling short. Then I have also worked in a political consultancy in Pune, where we were supposed to advise I mean, the the candidate was running for the opposition party. So he wanted certain papers research and like, तो randomly हम सारी policies को criticize करें कि नहीं ये numbers देखो, government ने ये बोला था, ये हुआ है. But now that I'm actually implementing, that's a job fair. So I can see, I mean, where the flaws are, Hmm. right from planning to execution of the whole model of job fair. तो वहां पे दिखाई ही देता है, because when we are saying like in preliminary selections, we have given 2,000 jobs. So yeah, coming back to the point. So I work in a political consultancy, trying to advise the candidate who was running for the opposition party. We were randomly picking up, cherry picking things like यहाँ पे ऐसे हुआ है when the government had actually promised this data, there's so much discrepancy. But then when we are actually implementing, let's say, job fair, so right from the planning to the execution, the employers are just not interested, or maybe the department which is I supposed to coordinate with so many employers, वो तो नहीं आ रहे हैं. And when we actually publish figures, let's say 2,000 jobs generated in this job fair, but final figures when they are actually placed, the people who are actually working, let's say it's less than 10% of the figure that we are claiming. So we can see the differences over here. So that part, and then again, like I was largely interested in public policy as a career rather than pursuing a career in law. So when even I am having informal conversations around with officers, like वो बोले यार तू लॉ किया है तो यहाँ पे क्या मतलब मरवा रहा है अपनी. So I'm like नहीं, but this is a space where I want to pursue. I see a career option over here because there are policy needs someone who has like depth in law as well as understanding कि ground पे क्या हो रहा है. So these are the two connects that I'm trying to find, and I think largely I've been able to find it. So yeah, that's my side. Over to anyone who'd like to take one. I यार I जैसे would like to go ahead, Kriti, go ahead. प्लीज शिफाली यू फर्स्ट. No, I was just saying कि I mean policy implementation is something जो मैंने यहाँ के बहुत अच्छे से समझी है. I believe जितनी भी policies बन रही हैं उसका implementation यहाँ कैसे हो रहा है, what are the gaps here और हमको कैसे analyze करना चाहिए. I think that I have learned a lot. Like it's been a great experience with that. Plus research जो हम लोग का एक main point है, I think I'm getting better in that. As in अगर मैं कोई project start करती हूँ तो since I am from law background, आई गो थ्रू पास्ट की ओके कहाँ से स्टार्ट हुआ है, व्हाट आर द लॉज जो इसके हम अंडर हम काम कर सकते हैं, या यू नो जो भी गैप्स हैं, कोई पॉलिसी बनी है इसके अंडर या नहीं बनी है, अगर पॉलिसी नहीं बनी है तो हम कौन से ऑर्डर्स के थ्रू क्या करवा सकते हैं. आई थिंक मैं कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ तो आई टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू रिसर्च अबाउट दैट और उसके पूरे पॉइंट्स आई गेट टू नो दैट कि ठीक है ये पॉइंट है, अगर हमें ये प्रॉब्लम आने वाली है देन वी शुड टेक दिस वे बिकॉज इस लॉ में ये लिखा है, ये पॉलिसी कैन हेल्प, या जो भी नोटिफिकेशन आता है मतलब उसका इंटरप्रिटेशन करना और उसके बीच में गैप निकाल के टू गेट आवर वे थ्रू हैज बीन अ लॉट ऑफ, मतलब आई थिंक बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन इसमें मुझे जरूर फायदा मिला है कि कहीं फंड नहीं मिल रहा है एंड आई गॉट अ सर्कुलर, सो आई एम रीडिंग दैट सर्कुलर, आई एम जस्ट लाइक ओके इसमें हम इसको तरीके से डाल के वी कैन गेट मनी आउट ऑफ दिस ऑफ कोर्स वेरी इजीली. So this happened and when I just genuinely go to my seniors and ever they're like अच्छा हाँ good idea, I mean of course ये तो हो सकता है, why not and all that. So this is a good thing. Plus अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉ मेकिंग इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या पॉलिसी मेकिंग ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कभी इन फ्यूचर इसके बारे में सोचेंगे सो दिस बैकग्राउंड दैट वी हैव गॉट कि ठीक है ग्राउंड लेवल पे दिस इज द रियलिटी, जो हम पॉलिसी बना रहे हैं दिस कम्स थ्रू दिस इतना सारा फिल्टर के थ्रू और यहाँ पे बस इतना ही बचता है. तो आई थिंक हम जब बनाएंगे अगर हम कभी इफ वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू सिट देयर एंड वी गॉट दिस जॉब कि हम ये कर सकते हैं देन इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज हेल्प, आई एम फॉर श्योर. Krati, over एक्चुअली to you, मेरे ना please. इफ इसके पहले जैसे हमारे साथ क्रिटिसिज्म करने की बहुत आदत है ना, हर चीज के धागे निकालने हैं बस.
तो ना मुझे हम्म। दिमाग में बहुत बायस था कि जो लॉज हैं वो यूजलेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यूजलेस हैं, कोई कुछ नहीं करता, सरकारी लोग कुछ नहीं करते। जो बायस जो ब्रेक हुआ है ना Yeah. कि यार कलेक्टर को True. काम करते मैंने देखा, एंड आई वाज हाँ लाइक कि सही मैं बात है। जिंदगी भर से ये सोचती आ रही थी कि ये लोग सिर्फ करप्शन करते हैं। ठीक है, मतलब ये हम्म। लोग इतना ज्यादा काम करते हैं। द थिंग इज कि वर्क इज नेवर एंडिंग, एंड ग्राउंड लेवल पे हम्म। इतने चैलेंजेस होते हैं ना, बहुत सारी चीजें कंट्रोल में ही नहीं होती एडमिनिस्ट्रेशन की, Yeah. कि ये चीजें True. हम एक्नॉलेज कर पा रहे हैं एक्चुअली। एंड सिंस वी नो दीज काइंड ऑफ थिंग इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो अब हम उस पोजीशन पे हैं कि हम दोनों साइड देख पाए चीज के, और उसके बाद उसको अच्छे से अप्रिशिएट कर पाए। उसके पहले मैं Yeah. अभी बहुत सारी वो सीरियस टॉकिंग होगी, मैं जोक मारने वाली थी कि बेस्ट थिंग मेरे लॉ बैकग्राउंड का ये है, इट्स लाइक अ क्रीप रेपेलर, कि anybody is being inappropriate, just randomly drop into the conversation that you're a lawyer, they'll back off. Yeah. So true. So true. So That is Actually, true. very true. Yeah. I was also going to ask But if you guys have had any weird or fun experiences in the district, because I have a couple of them and like they're hilarious. So for Even I have a very, yeah. very funny one. But go ahead with yeah, that. I would love like to hear that. Please. Okay. So like I described, my district collector, he's IIT plus IIM everything, and then UPSC crack here. Then even my ZP CEO, he is IIT Kanpur graduate. So we had gone for jail visit just to see कि वहाँ पे क्या मतलब situation है, वहाँ पे training क्या देना है. So they asked me to company. Okay. And then that day just to show कि तो 3 लोगों को वहाँ से they were releasing them. Okay. And so district collector just he was trying to interact with them, and I was standing right next to him. And then these two highly very high qualified people, and then asking these guys, one of them says मेरा छोटा सा shop है, the other guy says like हम वो उसके साथ काम कर रहे हैं, and third guy says सर मैं UPSC MPSC की preparation कर रहा हूँ, and I could see the things turn. Shit. God, nice. Nice, nice. I'll share my Oh, personal experience. It's hilarious, guys. It's one of Okay. the most embarrassing moment of my life, and I'm going to, just तो be तुम्हारी very स्कूटी embarrassed. खराब हो गई because थी? वो No, publicize no, कर no. देते हैं embarrassing में. Yes, I'm still putting out in public, okay. So the thing is that the first day when I was joining, so I went to my collector and she's like, "ठीक है, join," and all that formalities happened. And she's like, "Okay, now you can go and hammer." I was like, "Ma'am, I need a office work, yeah, office space actually. Sorry." So I was like, "Ma'am, I need a office space. So where do I sit and all that?" So she's like, "Okay, एक काम करो, जिला पंचायत office में I'll arrange a place for you so you can go." I was like, "Okay, great." And she's like, "Go talk to the COZP, CO जिला पंचायत, ठीक है?" तो आई वाज लाइक ओके मैम, तो आई डिडंट नो कि सीईओ जिला पंचायत की क्या पोजीशन होती है, व्हाट हायरार्की में क्या आते क्या नहीं। आई वाज लाइक होंगी कोई, भाई आई एम तो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल दैट शिट। तो शी इज लाइक गो talk to him. I talked to him. I was like, okay, ma'am, do you want me to talk now? She's like, yeah, just call him. I was like, okay. So I called him and I was like, hello sir, मैं यहाँ से आई हुई हूँ, आपका ऑफिस कहाँ है? तो he was just like, मैडम बगल में ही है। लाइक सर मैं एकदम नई आई हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता रास्ता, क्या कैन यू आप मेरे को रास्ते में बता सकते हैं मुझे कहाँ कहाँ जाना है? तो आई वाज ऑन अ फोन कॉल विथ हिम एंड आई वाज लाइक सर मैं राइट टर्न हो गई, अब मैं कहाँ मुड़ूं? एंड लाइक यहाँ पे आइए मैम, सीधा आइए, आप गलत आ गई। आई वाज लाइक ओके, और फिर Wow. मुझे नहीं पता था वो कौन है। एंड देन इज लाइक आप आ गई? मैंने बोला हाँ आ गई हूँ। एंड आई वाज लाइक सर आपके ऑफिस के बाहर ही हूँ मैं, अंदर आ जाऊँ? लाइक हाँ आइए। मैं अंदर आ गई तो मुझे उनके वो बॉडी वाले रोक दिया कि आप कहाँ जा रही हो? अरे मैं फोन पे बात कर रही हूँ, आप भी क्या बोल रहे हैं? मुझे उन्होंने रास्ता बताया, मैं यहाँ तक आई हूँ। एंड देन मैं जब घुसी, देन दैट वी ऑब्वियसली वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज लाइक ओके, सो आई थिंक आई एम इन ट्रबल नाउ। तो ही जस्ट लाइक आप थी फोन पे? हेलो सर, आई एम सॉरी, मुझे रास्ता नहीं पता था इसलिए आई वाज जस्ट स्टफलिंग एंड ऑल दैट, बट आई वाज Live सो location नहीं share एम्बैरेस्ड टू करा गो। हमने. भाई आई वाज सो एम्बैरेस्ड, आई वाज लाइक सर चाय की दुकान आ गई है, उसके बाद कहाँ मुड़ना है? ऑल दैट, आई वाज लाइक व्हाट एम आई डूइंग? Nothing can be more embarrassing than this. Oh Oh shit, my and I was like, God. but he was so sweet of him कि he was just very Yeah. sweet, उसने कुछ And he नहीं was बोला, he actually didn't say guiding you. anything, मेरी he सीओ was तो मुझे जेलर में guiding काला me करवा very देती, मैं ऐसे कॉल करती he, तो। very The patiently he directed me. the only thing remaining in this whole story was सर वो खिड़की से हाथ निकाल के दिखाओ आप कहाँ पे हो. Like really, and then उसके बाद Oh my he was telling me कि कोई डॉक्यूमेंट भेजो, प्रिंट आउट, मतलब डॉक्यूमेंट है तो आए मेरे पास जो प्रिंट आउट था वो कलेक्टर मैम के पास ऑलरेडी जा चुका था, तो मेरे पास सेकंड
प्रिंट आउट नहीं था। आई वाज लाइक प्रिंट आउट तो नहीं है बट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आई कैन शेयर ओवर व्हाट्सएप इफ यू वांट। तो ही इज लाइक ठीक है। तो मैंने एक का नंबर लिया एंड देन आई वाज लाइक उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया बट आई थॉट उन्होंने प्रिंट के लिए किसी का नंबर दिया, तो मैंने वो सेव करके भेज दिया उनको। तो लाइक ये आपने भेजा? मैंने बोला आपने तो बोला प्रिंट आउट के लिए भेज दीजिए, तो मैंने भेज दिया। देन आई रियलाइज इट वाज हिज नंबर। आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट एम आई डूइंग हियर। Oh my God. बट Shefali, उसके why बाद have when you I ever go, never shared this? Shefali is my very it good was friend, so and this is the first time I'm hearing about this story. this is Okay. so embarrassing यार, I can't। and then उसके बाद पता है, and I was like जब मुझे पता चला कि ओके वो सीईओ जिला पंचायत होता है, उसकी क्या मतलब what is it? I पोजीशन was like होती है। dude मैंने क्या कर दिया है ये, oh god। और मेरे को एनआरएलएम सेक्शन में सीट दी है एक, तो मैं वहां पे बैठती तो फ्यू डेज तो मुझे पता ही नहीं कि मैं एनआरएलएम में बैठी हूँ। जस्ट ये क्या है, व्हाट इज दिस ऑफिस आई एम सिटिंग, यू नो। तो दे लाइक मैम एनआरएलएम सेक्शन है, एनआरएलएम मतलब ये। देन आई रिसर्च अबाउट एनआरएलएम कि मैं जहाँ बैठ रही हूँ पता तो मुझे क्या सेक्शन है, क्या काम करता है ये। So I'm telling you, it is a really great journey. Like from first day to here now, I'm just like I have learned a lot. This has been an overwhelming journey for me. Wow. Right. Okay. My Himansa, fun sorry. experiences are yeah थोड़ा of course अलग है. So okay, so to build थोड़ा सा context for this ना, our SRA has like specific way of talking and is a very chill guy, very cool guy and all that. But then तो because he is like that, तो we also have a leeway and हम बहुत मस्ती करते हैं उनके साथ. So the first time when we were coming to Arunachal, so he tried to like paint the actual picture and everything, but then he the way he did it, we none of us were scared. We just found it very funny because he kept saying, "ये जो है ना, ये अरुणाचल है, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है." ठीक है, so that was a tagline for everything. ठीक है, अरुणाचल है, थोड़ा अलग होता है. And we came and we realized कि हाँ अलग तो होता है, and that became our tagline then as well. Now like for every single incident it's just मतलब relate नहीं कर पाते हैं लोग कई बार because initially to get cheese और mayonnaise I had to like मतलब travel करके वाइजैक से आ रही हूँ या कहीं कभी ईटानगर जा रही हूँ तो I have to like hoard these things in bulk and like come to SEPA because अब मिलने लगा है वैसे it's nice, it's developing. ठीक है, मेरा SEPA बदल रहा है. But so there was, and so as fellows now what happened, this Seva Aapke Dwar, Sarkar Aapke Dwar camps and everything, and this one CEO headquarter was there. She also got transferred, like very sweet lady. So she asked me to come to Sarkar Aapke Dwar and tell like the young youth over there about different skill trainings that's available, right, with like SSDM and like that we are giving and everything. And I ended up doing that and I told my DC about it and he's like, very good, you should go for all of them now. तो पहले वाले में गए and he's like अब 10 में जाओ. So the ones which were, so this is like the ones which were closer to the district headquarters, तो वहाँ पे तो they were still, it was still making sense to talk about the skill trainings कि हाँ इसके लिए जाओ, and mobilization भी हो रहा था थोड़ा बहुत. Now interior locations में जाने से nobody cares about skill trainings. Everybody has come there with specific intention. हमको आधार बनवाना है, हमको ST सर्टिफिकेट बनवाना है, हमको परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट बनवाना है. That's it. हमको आंख का चेकअप कराना है फ्री, मतलब आए हैं डॉक्टर्स क्योंकि ऐसे तो रहते नहीं है PSC CSC में. So priorities are set, right? So in those places, I was also having a nice picnic because nobody is coming, nobody is talking to me, and I have announced like 3-4 times. अभी इससे ज़्यादा क्या करूँ? So in some of these remote locations, you would get like 2 people who would come and register. So that's it. But it was still, I was like, chalo, theek hai. So I went to this like very remote location. It's near Indo-China border. ठीक है. तो this circle called Lada करके वहाँ पे एक बस्ती है Lower Liak, and that's literally like so there I realized that there are places like these also in India. मतलब अभी तक इस तरह की जगह हैं कि Lower Liak is this village जहाँ पे last motorable road जाती है उस जगह की. After that there is a hilly river and it's a hanging bridge kind of a thing, so you have to walk उसके आगे अगर आपको कहीं जाना है. So the next basti, there is no other option, you have to walk. Or else there is like dusra road that comes from like another side and it takes longer and all of that.
and these roads are horrible when it rains. मतलब और हमें जिप्सी मिलती है ऊपर से, तो अंदर के सारे पुर्जे जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं in those 4, and this is like 4 hours within the distance travel. So now anyways we have gone there, we have reached there, I've realized nothing's going to work because everybody is just like okay हमको we are here to get benefits जो agriculture department से मिलता है, health से मिलता है, and this Aadhaar ST और PRC. I understood. I was roaming around. I was like, "हाँ, nice jungle, zameen, nadi." I was exploring whatever अच्छा है. And now what happens is like I did not know about this. I was traveling with the Aadhaar team, so we were in the same gypsy. And वो लोग अलग जगह पे बैठे थे, मुझे एक दूसरी जगह पे stall दिया था. बाद में I get to know that there was a feud with a local person and the Aadhaar guy. In the sense that matlab so this basti was on the border of 2 circles, and that person who had come to get his son's Aadhaar was from another basti, and then the Aadhaar guy is like yahan pe nahi ho payega because your like CO or whatever ADC is not here to sign on those certificates, so you have to go to your circle headquarters and get it done over there. And now this person gets frustrated कि एक तो तुम लोग साल में एक बार आते हो, अब उसके बाद भी मेरा आधार, मेरे बच्चे का आधार नहीं बनेगा, उसका मतलब स्कूल में भी प्रॉब्लम होगा. I mean like there are justified reasons from both the ends, and that is what I think Shefali was talking about, like you become more open to listen to perspectives from both the ends, right? And वो जो आपके नयन चक्षु जो खुलते हैं ना इस तरह से ग्राउंड में रह के, it is something else. Yeah, correct. So, and so यहाँ पे there is this tribal sword जिसको दाओ बोलते हैं, ठीक है, DAO अरुणाचल में, and people carry it on a regular basis, and it's मतलब ऐसा नहीं कि it's like arm or anything, वो उससे मीट काटते हैं because वो जंगल से travel वगैरह करते हैं, तो फिर they pave their way through those daos also. It's like a square kind of a black iron का sword type, is like very heavy and like dangerous if used in that way. Now this person gets frustrated and he swings his dao at the Aadhaar guy. ठीक है, now Aadhaar guy is also local, तो वो ऐसे हाथ करके हटा दिया, and like थोड़ा सा फ्यूड टाइप का हुआ, and PSO वगैरह जो है उसको ले गया, and this guy is like वही रास्ता से जाएगा ना, देख लेगा हम, वही रास्ता से जाएगा ना, रुक के रहेगा वहां में, गाड़ी नंबर देख के रखा है and everything. I have no clue about all of this. Now हम खाना वाना खा रहे हैं, then I meet these people where I was like हाँ सर ठीक है, हो गया, क्या हुआ and everything, and then they tell me about this whole thing, and oh my god, people over here have such dark sense of humor. Like, and then this guy is like, मैडम वो बोला है ना, देख लेगा, बम मारेगा क्या मैडम, क्या लगता है आपको? How would I So scared to go back with them. It's no joke. And like December, January, this is happening 3 months, within 3 months that I have been to Arunachal, ठीक है? And I'm like, how am I supposed to know? And we were about to leave. We were like, हाँ ठीक है, क्या ही होगा, ऐसे ही बोल के गया, frustration में क्या कर लेगा? And then this medical team that left before us, they call us and they're like, some suspicious looking activities happening here, so akele mat aao types. And they called us and they called the ADC who was there as well. And this lady, she was an IAS probationer who was here for like a year, and a very cool person and all of that. And she's like, nahi, aise nahi ja sakte. And so we had a convoy. And this was like the coolest thing that happened with me, because मतलब आगे 2 स्कॉर्पियो, पीछे 2 स्कॉर्पियो, बीच में एक थोतू सी जिप्सी. जिप्सी में हम, and that Aadhaar guy was, I don't know, मतलब वो डरे हुए थे या फिर वो मस्ती कर रहे थे. It's like, मैडम हम ना पहाड़ के साइड में बैठेगा, हाँ क्योंकि बम तो रोड के साइड से मारेगा ना, अब रोड के साइड में Oh my मतलब मैं god. मर जाऊँ, आप रोड की साइड में बैठ जाओ, हाँ. I'm like, ठीक है, fine, whatever. ठीक है ना मैडम, कोई बात नहीं, साथ में आया था, साथ में जाएगा, या तो सेप्पा जाएगा या फिर ऊपर जाएगा. Oh god. Oh shit. And like by the time we reached back Seppa, it was just so hectic, and मतलब कुछ हुआ नहीं, of course, but then I was just like so tired.
after this whole incident, it was so funny. Like बाद में when you think about it, at that moment मतलब फिर भी Yeah, funny ही था scary. यार, मतलब ऐसे बात कर रहे थे तो it was funny only. And then like this another thing, this Azadi Ka Amrit Mahotsav हो रहा था, and there was this one event where the Prime Minister had joined online from Shimla, and we had some flagship programs in the district also that we were, you know, inaugurating and everything, and I was hosting this event. Now कल event है, आज मुझे 5 बजे ADC मतलब ये again extra assistant commissioner है, she was like looking at the whole event and she's like we need a host, we need a host, we need a compeer, and she's like Himansa, you do it. I'm like okay, ठीक है, बड़ी जल्दी बता दिए, कल सुबह ही बता देते, but fine. And we are doing it and all that, and it's just that like things over here are just so uncertain. We had a LED screen and everything for the live. We had figured out the internet. Half an hour before the program, everything's working. Just like 9 o'clock program starting, 8:30 LED screen blackout हो गया. Internet काम करना बंद कर दिया. And बेचारे DC sir, he's come in a bandgala and everything for this program, and nothing is working out of. And he's also frustrated. He's like, क्या है? Plan B नहीं है आपके पास? कहाँ है आपका plan B? What am I supposed to do now? LED काम नहीं कर रहा है. Then somehow NIC people, they got a projector and everything, and फिर वो सब लगाया. And I am also like, what am I supposed to do in this? I was just asked to host the event, not to look into LED. मैं electrical engineer नहीं हूँ सर आपकी तरह. And all, and then NIC people come and they put up a projector and everything, and like हाँ ठीक है सर, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. DC sir comes, sound check किया कि नहीं, sound आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर, किया है. And actually आ रहा था, ठीक है, किया था. DC sir goes, sound नहीं आया तो show cause notice दूंगा मैं. This NIC person turns to him like, देख रहे हैं मैडम, sound नहीं आएगा, मैं क्या करूँ, show cause notice देंगे, दे show cause notice. Event चल रहा है. Now Prime Minister is speaking and all that, and then everybody is like so haphazard because internet is coming and going and ये सब हो रहा है. SP sir comes पीछे and he's like, बंद करो यार. आप लोग के आपस में ही मतलब तालमेल नहीं बैठ रहा, हम क्या करें अभी. It was hectic, but it was that thing was really funny. That sound नहीं आया तो show cause notice दूंगा. Yeah. अरे एक बार मेरे साथ तो पता है क्या हुआ था कि यहाँ पे वो नहीं था, CM का बेसिकली कोई एक टाइप का था, उसमें जो भी अलग अलग जो स्कीम्स थी, देयर वर अ लिस्ट ऑफ 20-25 स्कीम्स, तो उन स्कीम्स के बेनिफिट घर घर तक पहुंचाने थे. तो इस टाइप का था, तो उसमें कार्य योजना बनानी थी. तो उसमें मैंने ये सर्वे क्वेश्चनर बनाने में और स्कीम्स की समरी वगैरह बनाने में, PPT वगैरह बनाने में इन सब की हेल्प की थी. इसमें इन सब में हेल्प की थी. तो अब प्रभारी मंत्री आ रहे थे प्रेजेंटेशन लेने के लिए, बिकॉज प्रभारी मंत्री वाज आस्क्ड बाय द CM, गो टू द डिस्ट्रिक्ट्स और वहां पे देखो इसकी ये CM जनसेवा जो आई नो जन अभियान समथिंग कुछ था, उसका कैसे चल रहा है सब कुछ प्रेपरेशन. नाउ ओरिजिनली द कलेक्टर वाज सपोज्ड टू गिव द प्रेजेंटेशन, बट एंड मोमेंट कलेक्टर को कहीं जाना पड़ा, तो उन्होंने बोल दिया ACO को कि आप प्रेजेंटेशन दे देना. हमारे ACO सर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी. So he called me, he said कि कृति since presentation तुमने बनाई है, वहाँ पे पता नहीं लैपटॉप वगैरह भी नहीं होगा किसी के पास. एक्चुअली वो पहले मेरे लैपटॉप मांगने लगे, मैंने बोला लैपटॉप नहीं दूंगी, मैं खुद जाऊंगी. तो बोलते हैं ठीक है एक काम करो, तुम चले जाओ, तुम प्रेजेंटेशन चला देना, बाकी हम देख लेंगे. मैंने बोला ठीक है. फिर हम वहां पे गए. अब वहां पे इतना इंटिमिडेटिंग माहौल कि प्रभारी मंत्री बैठा है और वो बड़े बड़े जो लोकल लॉयर्स वगैरह हैं वो सब बैठे हैं, ACO बैठा है, 1-2 और जिला पंचायत ऑफिसर्स बैठे हैं और लैपटॉप लेके मैं बैठी हूँ. तो मैंने प्रेजेंटेशन चालू कर दी. अब सब मेरी शक्ल देख रहे हैं, ACO सर ने एक शब्द नहीं बोला. तो अब सब प्रभारी मंत्री मुझसे बोलते मैडम कीजिए स्टार्ट. मुझे स्टार्ट करना है. फिर अब प्रेजेंटेशन मैंने तो बनाई थी और पूरे प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था, सो आई न्यू होल प्लान कि क्या कैसे प्लान किया है, कैसे क्वेश्चनर बनाया, हाउ वी सपोज्ड टू इम्प्लीमेंट इट. तो मैंने बोला चलो ठीक है, लेट्स विंग इट. तो मैंने प्रेजेंटेशन पूरी दे दी और वो सवाल भी मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा मैम ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे. किसी में तो ACO सर ने मुझे हेल्प कर दी कि अब उनको कि यार इसको समझ में नहीं आ रहा तो मैं जवाब दे देता हूँ करके काफी सारे जवाब मैंने दे दिए. अब वहां ना लोकल बहुत सारे लोग बैठे थे उस ग्राम पंचायत के जहाँ पे हुआ था,
क्योंकि कोई मतलब उसमें कॉन्फ्रेंस वगैरह में नहीं होता। हमारा जहाँ कान्हा है ना, तो वहाँ मोचा में ग्राम पंचायत है, क्योंकि उनको कान्हा भी जाना होगा, प्रभारी मंत्री को जो भी है, तो वहीं पे थी मीटिंग। तो ग्राम पंचायत के जो लोकल लोग हैं वो बहुत सारे बैठे थे, प्रेजेंटेशन मैं दे रही हूँ, वो लोकल लोग और जो लोकल नेता वेता बैठे थे उनको तो लग रहा होगा मैं कलेक्टर हूँ, क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री को प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, प्रभारी मंत्री को रपट रपट जवाब दे रही हूँ। तो उसके बाद अब हम निकल गए, अब मीटिंग हो गई, हम सब बाहर खड़े थे, डिपार्टमेंट वालों का सब मेरे पीछे। जैसे नहीं होता कलेक्टर कहीं आता है तो ये वो एप्लीकेशन लिया था, मैडम हमारे साथ ये हो रहा है, मैडम हमारे साथ वो हो रहा है। भाई इतनी मतलब मैं दूसरे की शक्ल देख रही हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं कलेक्टर नहीं हूँ, कि मैं कुछ नहीं हूँ। एक तो द वे आई ड्रेस अप एंड एवरीथिंग, तो लोगों को लगता है मेरे को देख के कि ये कोई लोकल इंसान तो नहीं है, ठीक है। तो अब इट वाज सो ऑकवर्ड। अब जो बाजू में जो मेरे साथ ऑफिसर थे, ये एनआरएलएम वाले सर थे, वो बोल रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं, आप वो मंत्री जी को बताइए, हम यहाँ पे क्या ही करेंगे, आप हमारे नहीं है, आप उनको बताइए। नहीं नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, हम मैडम से बात कर रहे हैं। मैडम आप देख लिए, हमारी एप्लीकेशन देख ली। इट वाज सो फनी। मुझे एक तो पता है ऐसा होता है, हम कभी भी किसी ग्राम पंचायत में जाते हैं ना, हमारे यहाँ ये मंडला में इशू है एक्चुअली, मध्य प्रदेश में ना महुआ से लिकर बनाना अलाउड है, ठीक है, आप 5 लीटर तक बना सकते हो, उसका बड़ा फायदा उठाया लोगों ने। तो अब किसी भी ग्राम पंचायत में जाते हैं ना, वहां सब टन होते हैं। तो एक तो लोग पी के आए हैं, ठीक है। अब पी के आए लोगों के साथ ये होता है कि उनका आप कुछ बोल रहे होते हो समझ में नहीं आता, वो एक लाइन रटते रहते हैं कि मैडम प्लीज, मैडम देख लो, मैडम देख लो, मैडम हमको ये नहीं मिल रहा, मैडम वो नहीं मिल रहा, मैम आवास नहीं मिला, मैडम हमारे शौचालय नहीं बना। भाई इतना वो भैया, वो एनआरएलएम वाले सर लिटरली जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, ऐसे कि ऐसे ऐसे, नहीं नहीं चलो जाने दो जाने दो जाने दो, वैसे मेरे को गाड़ी मिली, मैडम चलो आप निकलो यहाँ से, आप इट वाज वेरी फनी। कितने चालू है यार इसी बाद में मुझे ना पहले बहुत ऑनर्ड फील हो रहा था कि मेरे को प्रभारी मंत्री को प्रेजेंटेशन देने मिली यार वो। बाद में मेरे को लोग बोलते हैं मैडम इतना वो मत, वो हवा में मत उड़ना, वो एसीओ सर इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे कि प्रभारी मंत्री सर आपसे तो कुछ बोलेंगे नहीं, आपकी बोली शक्ल देख के एसीओ सर प्रेजेंटेशन देते तो उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करते। बहुत फनी इंसिडेंट था वो। मुझे इतना हो गया था, अच्छा ठीक है, ओके आई एम द बॉस हियर, आई एम गिविंग द प्रेजेंटेशन। पता चला आई वाज जस्ट अ पॉन। मतलब ग्राम पंचायत में बड़ा मजा आता है। एक बार हम गए थे वहां पे ना, उनका कोई इशू था ये शौचालय वगैरह का, तो वहां से हमको नहीं वो ग्राम पंचायत विजिट करने बोला था जीपीडीपी वाला, वैसे तो मेरे को कोई लेके जा नहीं रहा था। तो डिस्ट्रिक्ट की एक टीम जा रही थी, कोई एक वो बैठी थी, तो उसमें वो टीम जा रही थी ये स्वच्छ भारत वाली। तो मैडम बोलती चली जाओ तुम ग्राम पंचायत में अपना काम कर लेना, हम अपना काम कर लेंगे। अब मैं बैठी हूँ वहां देख रही हूँ, तो वहां बात कुछ और चल रही है, वहां एक बंदा आके बैठ गया बीच में, कुछ नहीं सुन रहा वो, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं अपना पैसा लेके ही जाऊंगा। सब चुप कर रहे हैं, नहीं बब्बा चुप हो जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं मैडम और कुछ बात करें, नहीं मुझे पैसा चाहिए मैडम, आप मुझे पैसे दिलवा। भाई वो 3-4 लोग बीच में, और इतना फनी क्योंकि मुझे किसी चीज से कोई लेना देना, आई वाज लाइक द स्पेक्टेटर who doesn't know the problem, who's not here to solve the problem, who is just to see things. And I was like और मैं ना हंस भी नहीं सकती उनके मुंह, क्योंकि उनकी बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। वो उनको पेमेंट नहीं हो रहा था, उनके शौचालय वौचालय बन गए थे, उनको पेमेंट नहीं होता मनरेगा से, तो उनकी सीरियस प्रॉब्लम चल रही थी। बट मेरे को उनकी आंटी देख के इतनी हंसी आ रही थी ना, अब ना मैं एक बार जोर से हंस दी। अब वो एकदम मतलब बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन है, पीछे से बहुत जोर से हंसने की आवाज आई, पूरी ऑडियंस मेरी तरफ, और मैं मुंह छुपा ली। मेरे को वो जो सच वाली मैडम है वो तो बस रहती, तो मैं नहीं लेके आएंगे अगली बार। मैंने कहा मैम आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं बोलती, मुझे प्लीज लेके चलना। बहुत मजा आता है ऐसी ना ग्राम पंचायत अटेंड करने में, स्पेशली जब आपका कोई काम ना हो, आप वहां सिर्फ टाइम पास करने गए हो, तो So बड़ा with अम्यूजिंग me, लगता है। what लोग happened एकदम was, एकदम टुन होके आते हैं लोग। yeah, okay. With और me, दिन के honestly, 12 बजे what की बात है, happened? शाम की रात की भी बात नहीं है, वो सुबह उठते से दारू पी लेते हैं। कोई टाइमिंग नहीं होता दारू पीने का। कोई टाइमिंग नहीं होता। अरुणाचल में they make अपोंग, right? This rice beer and millet wine and everything, and it's ये यहाँ तो मतलब it's यार culturally वहां like तो a part ठंडी of the रहती है यार, culture यहाँ only. धूप में दारू पी के घूम रहे हैं लोग। यार लेकिन ठंड में भी मतलब इतना नहीं। कितना। वेदांत वही ट्राई कर देन रहा था। ऊपर से हाँ सॉरी, हाँ वेदांत यू saying No, no, something. no, it's fine, it's fine. Yeah.
नहीं बस वही कह रही थी मैं, एंड ऊपर से लाइक द अदर अल्कोहल दैट यू गेट ओवर हियर आल्सो इट्स लाइक ऑफ टैक्स, सो इट्स वो गोवा रेट वाला मिलता है यहाँ पे, एज इट इज मतलब लोग कम पीते हैं, जैसे कि अब और मतलब दारू गोवा सस्ती कर रेट। दो, and yeah, it's like a major problem also at times ना, मतलब हाँ it's funny and everything, कभी कभी तो मतलब you find it amusing, and festivals वगैरह में तो भाई कुछ भी होता है, and it's just ऐसे, and again like Krati was saying ये ग्राम सभा वगैरह में तो, and you really like see some really funny incidents क्योंकि कुछ चल रहा है, and then this one somebody comes full अपंग पी करके, and then they would be like कुछ अलग ही बोलने लग जाएंगे, मतलब मीटिंग चल रही है जीपीडीपी की, वो जल जीवन मिशन की बात करने लग जाएंगे, अरे वहां से पानी निकाल रहा था, मेरे घर में पानी मतलब as serious the problem could be, in that moment you just cannot take it seriously because of the way it is being articulated or whatever, and मतलब कुछ तो हुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, फ्रिज चोरी हो गई दवाइयों के साथ, लोग फ्रिज चुराने के लिए दवाइयों के साथ फ्रिज चुरा के लेके गए, बट दिस इज द क्या बोलते हैं मतलब आफ्टर इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म, कंपाउंडर को रूम में बंद करके वो वैसे ही निकाल के लेके चले गए, डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस में बात हो रही है, डीएमओ इज सेइंग सर वो लाइफ सेविंग दवाइयां थी सर, I just laugh, and DC looks at me and he also cracks a smile and he's like, yeah, it is amusing, I know. See, that thing has happened already, okay, in mythology when Hanuman took the entire mountain to Sri Lanka instead. That's it. Yeah, ATM चोरी हो गया अभी recently, एक महीने पहले। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन Complex के साथ चल दिया, रहा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के Sorry, साथ sorry. like so many absurd things happen over here. So about a month ago, they had organized Zilla Panchayat. They had organized a posh workshop, prevention of sexual harassment. They got a human rights lawyer and all, and the entire audience presented for that workshop was female staff. I was like, what the hell? Do you not understand? Why is it? Oh God. And the exact opposite, like Women's Day पे some of our like fellows in other districts were posting like वो women fellows थी तो उन्हें मतलब like गुलाब या फिर बुके देके felicitate वगैरह किया था, and I was like हमारे district में felicitate करने के लिए भी we don't have a women's staff. That's dark. That's bad, dude. This posh wala thing was so funny. It's like Yeah. women be like, हमको खतरा नहीं, हम ही खतरा हैं. Alright. Oh, cool. Okay, should we wrap up now? Yeah, let's call it Yeah. a day Yes. Yes. before Yes. Vedant's data Such give a up. great. Yeah. I'll Yeah. stop recording now. The other one. Thank you so much. Oh my God.